warm welcome to all the distinguished dignitaries, honorable university officials, delegates, eminent scholars, respected faculty members, and students, to the International Conference on Changing Dynamics of India's Narrative Diplomacy, organized by Faculty of Humanities, Social Sciences, and Liberal Arts, Sri Guru Gobind Singh Tri-Centenary University, in collaboration with the Indian Council of World Affairs, sponsored by Indian Council of Social Science Research. It is now time to begin our special session titled The Power of Perception, Narrative Diplomacy and Operation Sindoor. ऑपरेशन सिंदूर रणनीति की वह रेखा है जिसने साहस को कथा और कर्तव्य को कीर्ति में रूपांतरित कर दिया. This session is set to explore how perception, communication strategies and narrative construction shape the understanding of strategic operations in the global arena. It is my proud privilege to invite our special guest, Dr. Hemang Joshi ji. I request Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Dr. Hemant Verma to felicitate our special guest. Presenting the Vadodara constituency. A dynamic and forward-looking leader, he embodies a new generation of public leadership grounded in knowledge, service, and inclusive development. With academic training in physiotherapy and public administration, he brings a multidisciplinary perspective to policy making and governance. Prior to entering Parliament, Dr. Joshi built a diverse career spanning education, healthcare regulation, and corporate leadership. He has served as Vice President of the Municipal Primary Education Committee, HR leader in a US-based multinational company, inspector with the Gujarat State Physiotherapy Council, and founder member of Alindra Higher Education Primary School, contributing significantly to grassroots and rural education development. His leadership journey began through active involvement with Akhil Bharati Vidyarthi Parishad. In Parliament, he serves on key committees related to education, women and child development, and youth and sport. He is also associated with Ministry of Youth and Sports Consultative Committee and Court of Gati Shakti Vishwavidyalaya. His core focus area include education reform, youth empowerment, skill development, women and child welfare, and digital inclusion. Dr. Joshi also serves as State President of Bharatiya Janata Yuva Morcha Gujarat and holds significant organizational responsibility within the party. Internationally, he represented India at the second BRICS Traditional Values Forum in Brazil. Committed to inclusive growth and nation building, Dr. Hemang Joshi continues to combine academic insights, grassroots engagement, and legislative leadership to serve with integrity and innovation. Sir, we heartily welcome you. I now request Professor Dr. Hemant Verma to open the session. A very good afternoon, everyone. So we are meeting after a good lunch, and the session which we are going to witness and listen and to hear is going to be very engaging for all of us, because this is the most recent experience and the most poignant one, Operation Sindoor, that we all Indians experienced in the recent times, and this changed the perception of our country, not only across borders but within borders also. Even the common man who doesn't understand much of international relations, he was so finely engaged in all the discussions, all the TV proceedings that were going on at that time, and the news channels and the newspapers, and the way India was projecting that war with Pakistan, and how we very maturely dealt all the issues, how we try to reach out to our masses, and how we try to reach out to the world leaders, the world media, the global media, and that kind of engagement, that kind of efforts, they change the perception of India across borders. So I am not an expert on narrative diplomacy, I am not an expert on Operation Sindoor, but we have a very knowledgeable and a very vibrant young leader from India, who will be talking to us, who will be speaking of his experiences when he was a part of that delegation that went across all borders, all countries, and presented India and presented our point of view to the world. So without much ado, I request you, Dr. Joshi, to kindly address the audience, and the session is all yours. Thank you so much.
So, good afternoon, friends. Sir, the lunch was heavy. Good afternoon. We are going to talk about Operation Sindoor. We should have that energy, right? Good afternoon. Jai Hind. So, first of all, I would like to thank SGD University for inviting me in this session to interact with young minds on a very unique subject where when India is aspiring to become Viksit Bharat, developed nation, I think discussions like this should be very much important. If we talk about track 2 diplomacy, I think it's a new age India, and because of that, we are able to witness such kind of exercises where research scholars, young minds, professors, academicians are discussing about international relations and the impact of few international incidents on the world. Because the world is now changing. Earlier, there was a unipolar arrangement in the world setup. And if you remember during the COVID times, VC sir, our Honorable PM Shri Narendra Modi ji has addressed to the world in the virtual meeting of all the presidents that post-COVID there will be a new world order and we need to be ready for that world order. At that time, people were not taking him seriously. But if you see right now, the scenario post-World War II has again emerged and now there is a new world order. There is a discussions about multipolar world. Madam just mentioned my visit to Brazil Parliament during the BRICS when the Brazil was the chairman of BRICS. At that time, our topic of discussion also was about the multipolar world. So why we think about multipolar world? Why in G20 presidency of India we talked about global south? This new word is also now we are listening every now and then. We are emerging as a leader in global south because now the wars are not fought at only borders, but there are wars of narratives. Operation Sindoor delegation, where we went to global outreach at different places. I myself went to 5 countries of Southeast Asia and Japan, and where we reached out to their premiers, where we reached out to their think tanks, their media personnel, their ministers of external affairs, our counterparts of member of parliaments and friendship groups of those parliaments. Why we did so? Because when we conducted Operation Sindoor for the justice of our Pahalgam victims, at that time a new war of narrative has started. One person somewhere claimed about that they have stopped the war, and they have that single person till now has claimed 100 times that he has been able to stop the war between India and Pakistan. And today there was a new statement from him. If anyone remembers what today he spoke, now, today he released a new statement about India-Pakistan war. I want any young mind to answer it if you are aware of it. Yeah. Yeah. Today he gave a very different statement that if
I did not intervene, then Pakistan PM would have been killed by India. So it's his today's statement. So this kind of statements, we get to know. We are not, very much happy, because we know that he can just release the statement like anything. But it's not about a statement from a person. It's about a statement from the president. And because of that, there is a war of narrative. There was also a kind of narrative that whose airplane or whose aircraft were shot, who lost more defense aircraft, India or Pakistan. But it was not about a country's aircraft. Behind the scene, it was a game to establish which company aircraft is superior. So all these kind of things were, used just to brand their own product, just to demean someone else's product, and there were two countries were discussed. So our purpose of Operation Sindoor was to burst whatever the clouds of narratives were created in the world and show them the truth with facts. So when we went, we shown them the Google satellite images. We have shown them the proof that who is the culprit, and we given all the facts. Whether we also had a very elaborated press conference in all the countries. There were few adverse journalists who asked us any kind of questions, but we answered them with facts and figures. And when our last leg of the Operation Sindoor delegation, we went to Malaysia. If we know, Malaysia is a very currently there is a very much issue of radicalization in Malaysia. If you follow the international politics, so there is not an issue of terrorism as such, but lot of radicalization, ideological radicalization issue is there in Malaysia. So there, one journalist also, he was pro-Pakistani journalist. He asked us that, but what about terrorists coming inside and firing to your tourists? So don't you think that at the basic it's your fault? So we told them, because we knew the whole scenario of Malaysia itself. We were briefed wherever we used to go in any country. Earlier, at the first, we were having the debriefing from the ambassador about the situation of that own country. So we told that even ISI, burnt whole police station of your, Malaysia. But we never told that it is your fault that your police station was burnt by ISI. So when we spoke about it, the Malaysian official told us to not to answer her question, because it may worse the things between India and Malaysia. So it is all about narratives. It is completely about the war of narrative, the way the perception has been created for our country, and it was our duty, because we have not done anything wrong. So we went to the world and shown them. And you can say, even before our whole 15 days delegation tour is completed, before that, UNSC has supported and mentioned Pahalgam as a terrorist attack, and it has a Pakistani backing. Earlier it was not, they were not, mentioning it. But after our global outreach, after we put our things upfront without hesitating, UNSC were able to establish that it is a Pakistani-sponsored terrorist attack on Pahalgam. तो ये मैंने आपको पूरा बात किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
कि वो क्यों इम्पोर्टेंट था। पर आज सबसे पहले तो एसजीटी यूनिवर्सिटी, ICWA, ICSSR का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देश में बहुत ही कम जगह पर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है कि जो डिप्लोमेसी और नैरेटिव्स पर बात करते हैं। वरना तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले यहाँ पे आके आप में से किसी को पूछूंगा कि नैरेटिव मतलब क्या, डिप्लोमेसी मतलब क्या। पर मैं इसलिए अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया कि जब चौथाई वाले जी और सभी वरिष्ठ अभी इससे पहले सेशन लेके गए हैं तो आप सबको वो चीज़ तो पता चल ही गया होगा, हमारे युवा साथियों को, कि ये हमें ये क्यों करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के लिए जो परसेप्शन क्रिएट होता है, और वो परसेप्शन को तोड़ने के लिए भी सिर्फ हमारे देश के हम खुद नागरिक नहीं, परंतु 32 मिलियन से ज़्यादा भारतीय के जो दूसरे देशों में रहते हैं, वह भी इंडियन डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा इज ऑल्सो प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन बर्स्टिंग एनी फेक नैरेटिव्स क्रिएटेड बाय एनी एडवर्स कंट्रीज। अभी यह जो टैरिफ का जो बात चल रहा है, टैरिफ में किस प्रकार से अभी ट्रेड डील में वो धीरे धीरे पूरा डाइल्यूट हुआ, उसके अंदर भारत की डिप्लोमेसी का तो असर है ही, पर साथ में वहाँ की जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है, उन्होंने भी वहाँ पे यूएस में लॉबिंग इज लीगल, तो उन्होंने भी एक बाकायदा लॉबिंग करके सभी उनके सेनेटर्स को बोला है कि यू आर डूइंग इनजस्टिस और रॉन्ग टू इंडिया, दिस इज नॉट करेक्ट प्रैक्टिस। और उसकी वजह से भी बहुत कुछ उसमें डोनाल्ड ट्रंप को माइल्ड होना पड़ा। तो इंडियन डायस्पोरा ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट, and in this world of narratives where India can play a major role, it is the Indian civilization, it is the history, हमारा जो 5000 साल पुराना जो इतिहास है, वो इतिहास की धारा भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है कि किस प्रकार से जो मोदी जी ने जो G20 में वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा लगाया था, वो सिर्फ नारा नहीं है, वह सच में भारत का किस प्रकार से अहम रोल बन सकता है, वह बात का वो प्रमाण। और कल ही अगर आपने ब्राजील के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सुना हो तो उन्होंने बोला कि इंडिया इज नॉट हैविंग एनी एक्सपांशनिस्ट माइंडसेट, मतलब विस्तारवादी मानसिकता भारत की कभी नहीं रही, और इसी वजह से हमें भारत के साथ कार्य करने में और भारत के साथ में चलने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वी आर द विक्टिम ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। अभी तो हम पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव और बहुत सारी कुछ चीज़ें कर हम वो कॉलोनियल माइंडसेट से अभी तो हम छुटकारा पा रहे हैं। आप देखिए धीरे धीरे करके हम वो दिल्ली के अंदर भी कई सारे वो कॉलोनियल जो टर्मिनोलॉजीज, कॉलोनियल जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, उससे हम छुटकारा पा रहे हैं। जो पहले 7 RCR हम बोलते थे, उसको लोक कल्याण मार्ग हम बोलते हैं। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वो टिपिकल जो नाम थे, उससे हम सेवा तीर्थ तरफ हम आगे आए। कर्तव्य भवन और कर्तव्य पथ, जो राजपथ पहले बोलते थे, उसको हम कर्तव्य पथ अभी हमने उनको नाम दिया। यह सिर्फ नामकरण नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ नेम, बट विद दैट इट ऑल्सो गिव अस अ गाइडिंग लाइट फॉर चेंज ऑफ आवर माइंडसेट। तो ये सारे जो चीज़ों से अभी तो हम जब छुटकारा पा रहे हों, तब हम कभी भी इस प्रकार की मानसिकता लेकर आगे नहीं चल सकते। दूसरी अगर मैं आपको बात कहूं तो कई सारी जगहों पर, फिर वो यूएस हो या और कोई देश हो, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर, आईटी, फिनटेक, ये सारी चीज़ों में, और अभी तो स्पोर्ट्स, अभी का अगर लास्ट मन की बात आपने सुना हो तो उसमें पीएम साहब ने मेंशन किया कि अभी के T20 वर्ल्ड कप के अंदर कितने सारे देश के अंदर इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं। मोर देन 5 कंट्रीज वी हैव इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स प्लेइंग ऑन बिहाफ ऑफ दोस टीम। तो इंडियंस का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी इतना आगे है, हमें सिर्फ उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है।
हमें सिर्फ हमारे अंदर जो हनुमान जी को पहली बार जब भगवान राम ने बोला था ना संजीवनी लाने के टाइम पर कि आपके अंदर कितनी दिव्य शक्ति है, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया और फिर उन्होंने अपने वो हिडन पावर्स को एक्सरसाइज किया। उस प्रकार से हमें सिर्फ हमारा हिडन पोटेंशियल उसको एक्सरसाइज करना है, बाकी हमारे अंदर वो पोटेंशियल भी है और हमारा इतना रीच भी है। मैं अगर टूरिज्म की बात करूं तो टूरिज्म सर, अगर आप वहाँ पे डिसिप्लिन के लिए अगर खड़े हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी तो बातें शुरू हो जाएगी, और अच्छी लगेगी तो कुछ लोग सुन लेंगे। पर अगर मैं आपको बात करूं कि हर एक चीज में हमारा जो हिडन पोटेंशियल है उसको अगर हमें सेंसिटाइज करना है तो उसके लिए हम सबको सबसे पहले वो पोटेंशियल को, अपने आप को एक आत्मविश्वास डेवलप करना पड़ेगा। और इसी वजह से अभी अगर हम AI समिट की बात करें, अभी अगर हम क्रिएटर्स समिट हुआ था उसकी अगर बात करें, तो कई सारी अच्छी चीजें हमारे भारत में अभी हो रही है। वो बात अलग है कि उसके अंदर भी जिनको नेगेटिविटी फैलानी हो, जिनको नेगेटिविटी ढूंढनी हो, वो चीज उसमें आ ही जाता है। पर जब हमारे देश की बात हो तो फिर वो चाहे रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जब बात देश की हो तो हमें देश के लिए खड़ा रहना है। और यह बात मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब यंग माइंड हैं। विकसित भारत वो तो वैसे भी होने ही वाला है। विकसित भारत को, क्योंकि हम जिस प्रकार से, जिस इकोसिस्टम से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी वजह से ही हम एक डेवलप नेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर हमें चिंता इस बात की करनी है कि जब विकसित भारत हो जाएगा तब उनको चलाने के लिए लीडरशिप में, या उनको चलाने के लिए जो प्राइम मूवर्स होंगे वह कौन लोग होंगे, वह कैसे लोग होंगे। तो उसके लिए हम जब आगे बढ़ रहे हैं तब मैं मानता हूं कि नैरेटिव्स की चर्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव्स और परसेप्शन, उसकी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो रिसर्च पेपर्स हों, आपके डिबेट्स हों, आपके डिस्कशंस हों, उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस, नैरेटिव्स एंड डिप्लोमेसी, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम भार दे पाएंगे तो ही हम इस बात के अंदर हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं आपको लेमैन अगर आपको बात बताऊं तो कई सारे इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ने वाले बच्चों को भी इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनामिक्स कई बार पता नहीं चलते। तो मैं आपको अगर इसमें से अगर मान लिया 10% भी अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही उनका रुचि है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 न्यूज़पेपर आप मतलब रेगुलरली पढ़िएगा। एक द इकोनॉमिक टाइम्स और दूसरा द हिंदू, क्योंकि उसके अंदर आपको इस प्रकार की बातें न्यूट्रलिटी में बताए जाएगी कि जो आपके एकेडमिक के लिए भी बहुत ही अच्छा आपको काम आएगा। कई बार आपको इकोनॉमिक टाइम्स, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का अनुभव है। मैं मेरे बैचलर से इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था, तो कई बार मुझे ऐसा मैं फोर्स ही कर पा रहा था कि इसमें आगे जाके ये होने वाला है, इसमें आगे जाके मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के 2 देशों के बीच में रिलेशन होने वाला है। और वैसे ही उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद होता था। तो किस प्रकार से चीजें अनफोल्ड होती हैं, वो कुछ चीज ओवरनाइट नहीं होती, उसके अंदर छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं और उसके वजह से इस प्रकार का पूरा नैरेटिव क्रिएट होता है। और ये नैरेटिव की दुनिया है, उसमें एक बात मैं अगर आपको बताऊं तो नैरेटिव की दुनिया है वो एक ऐसी पिच है कि अगर जिसमें आप बैटिंग नहीं करेंगे तो कोई और आके बैटिंग कर ही लेगा। तो इसमें आपको कोई डिफेंसिव खेलने का कोई स्कोप ही नहीं है, आपको खुद फ्रंट फुट पे ही आना पड़ेगा। अगर आप अपना नैरेटिव आगे आके नहीं रखेंगे तो आपके लिए कोई और आके नैरेटिव रख दे। तो ये पूरा जो नैरेटिव का जो बात है उसमें आप देखिए कि अभी एक 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो AI समिट में जो एक फियास्को हुआ, और एक पॉलिटिकल ग्रुप ने जो आके विरोध प्रदर्शन वहां पे किया, एक शेमफुल एक्ट। यह दोनों चीजों में भारत से ज्यादा चाइना, पाकिस्तान
बांग्लादेश, यह सब कंट्रीज के ट्विटर हैंडल और वहाँ के प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ ज़्यादा वायरल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ठीक है, यूनिवर्सिटी ने जो किया गलत किया, या वो पॉलिटिकल जो ग्रुप है उन्होंने किया वो गलत किया, पर चाइना ऐसा नहीं बोलेगा कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने गलत किया। वहां पे क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान ऐसा नहीं बोलेगा कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया, वो क्या, इंडियन यूथ। तो नैरेटिव ऐसे बनते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के अंदर, अगर आपके सोसाइटी में मैं आऊं और वहां पे कुछ शादी है, कुछ इवेंट है, और वहां पे आके अगर जो इंसान आपकी सोसाइटी का है भी नहीं, वो अगर खड़ा होके बोले ये इवेंट बहुत ही बेकार है, सोसाइटी वालों ने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सब पैसे खा जाते हैं, वैसा कर लेते हैं, अगर मुझे पूरी बात नहीं पता है तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि यह जो सोसाइटी के लोग हैं वही इस इवेंट के खिलाफ है। मैंने एक बहुत ही माइक्रो लेमैन एग्जांपल आपको दिया यह बात समझने के लिए कि नैरेटिव कैसे बनता है। तो अभी नैरेटिव तो बन गया, पर अगर वी बीइंग अ यूथ उस नैरेटिव को हम अगर बर्स्ट नहीं करेंगे तो ये पूरी ट्रेंड की दुनिया में ट्रेंड एक यूनिलैटरल ट्रेंड चलता रहेगा। तो ये जो सारी बातें होती हैं, ट्रेंड और वायरल, ये सारी चीजें ऐसी है कि अगर आप उसका काउंटर नहीं करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो जाएगी। तो ये चीज एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर नैरेटिव के सामने अगर आपको काउंटर नैरेटिव नहीं रखेंगे तो सामने वाले का प्रोपोगंडा ऑटोमेटिकली विन कर जाएगा। और काउंटर नैरेटिव ऐसा नहीं है कि हमें मतलब बेसलेस काउंटर करना है। हमारे पास फैक्ट होते हैं तब हमें काउंटर करना है। हम अगर काउंटर भी करें, अगर मान लीजिए कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो ओपिनियन पोस्ट कर रहे हैं, कभी भी बेसलेस ओपिनियन पोस्ट ना करें, 2 बार उसको फैक्ट चेक कर लें, वरना उसके ऊपर भी कई सारे विद्वान फिर उसको भी ट्रेंड करके वायरल कर देते हैं। हमारा एंशिएंट नॉलेज जो सिस्टम है, योगा है, आयुर्वेदा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम फिर से वापस ला पा रहे हैं। इस बार बजट में आपने देखा होगा कि योग और आयुर्वेदा को ज्यादा उन्होंने एम्फेसिस किया है बजट के अंदर। निम्हांस भी फिर से उन्होंने ज्यादा खोलने के लिए भी बजट में प्रावधान भी किया है। एल्डरली केयर के लिए, नर्सिंग केयर के लिए बजट में स्पेशली स्किल हमारी ज्यादा बने उसके लिए किया है। क्यों किया है? क्योंकि यह सारी चीजें उनको पता है कि भारतीयों में सबसे अच्छी है। एल्डरली केयर वो सिर्फ केयरिंग नहीं होता, वो हमारे संस्कार में है कि हम किस प्रकार से बड़ों को ज्यादा अच्छी तरीके से केयर कर पाए। मैं जब जापान गया था, जापान माई शॉफर, हमारे जो ड्राइवर थे, हिज एज वाज 93, जो हमको एयरपोर्ट में रिसीव करना है। हम जितने भी मिनिस्टर्स को मिले उन सब का एज 90 अबव था। तो जापान में लॉन्जेटिविटी है, पर उसके सामने यूथ ही नहीं है। जापान नीड्स इंडियन यूथ, और उसको लेकर भी कई सारे एमओयूज अभी चल रहे हैं। और सिर्फ जापान नहीं, साउथ कोरिया में अगर हम थोड़ा नीचे आए तो उसमें वो लॉन्जेटिविटी 80, 83, वहाँ पे भी ऐसे हम कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स को हम मिले। तो इस प्रकार से जब भारत के पास इतना यूथ है, हमारा डेमोग्राफिक पावर है, तो सबसे ज्यादा अगर हमारे पास डेमोग्राफिक पावर है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्डिंग भी हमारा होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम congratulating this SGT University to be able to conduct this kind of conference, because it is very rare conference. Believe me, no university or no institution has thought about कि narrative building के लिए, परसेप्शन और डिप्लोमेसी के लिए हमें कॉन्फ्रेंस करना है या टॉक करना है। तो अगर हम यूथ हैं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, then we must play a role to build a counter narrative to any narrative which is being created by anti-India forces. We have to play our role. We have to play our part. अंत में मैं सिर्फ यही आपको बात बता के
हम फ्लोर ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए कि बीइंग अ यूथ हमारे पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बीइंग अ यूथ हम कई सारी चीजें ऐसी करते हैं कि जो हमको खुद को पसंद है। और अभी का जो अगर हम जेन जी की बात करें तो जेन जी को तो मतलब ज्यादा इंस्ट्रक्टिव माइंडसेट उनको पसंद नहीं आता। उनको अगर अपने को जो करना है वो अगर हम उनको करने दें तो उससे उनको ज्यादा अच्छा लगता है। पर हमें जिस प्रकार से जो नेशन बिल्डिंग में हमें जो पार्ट प्ले करना है वह एक हमारा आवर ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, वो हमें खुद को ही आइडेंटिफाई करना है। यह एक बात सिर्फ आप सब एक बार सोचिएगा। अगर यह बात अगर आप सोचेंगे कि व्हाट इज माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय नेशन, और इस प्रकार से वो एक चीज में अगर आप अच्छे से कार्य करेंगे तो मैं मानता हूं कि जो विकसित भारत का जो संकल्प है वो संकल्प हम साकार कर पाएंगे। मैं अगर बताऊं कि माय ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें रूलिंग पार्टी को प्रेस करना है, ऑपोजिशन पार्टी को हमें वही करना है। गांधी जी ऐसा बोलते थे कि आजादी की लड़ाई के अंदर जो शिक्षक अपनी जगह पर अच्छी शिक्षा दे रहा है वो भी आजादी के लिए काम कर रहा है। जो सफाई कर्मचारी अपनी अच्छी से सफाई कर रहा है वो भी आजादी के लिए ही काम कर रहा है। तो अभी हम आजादी के लिए तो कुछ करना नहीं है, अभी तो हमें विकसित भारत के लिए करना है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको प्रामाणिकता से, उसके अंदर हम कैसे नेशनल इंपॉर्टेंस को हम अलाइन कर पाए, बस उस प्रकार से हमें वो कार्य करना है। बस इतना ही कहकर मैं फ्लोर ओपन करूंगा। किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो हम उसका चर्चा कर सकते हैं। 3 प्रश्न हम ले सकते हैं। तो सर क्या फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बेझिझक पूछिए। आई थिंक यू हैव मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, सो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जैसा कि नैरेटिव्स जो है ये बड़ा कॉमनली जो है आजकल प्रैक्टिस हो रहा है इंटरनेशनल सिनेरियो में। डू वी हैव एनी काइंड ऑफ विद एजेंसी और एनी वेयर वी कैन हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, या इसको कोई मॉनिटर करने का कोई, क्योंकि ये तो कुछ भी कोई भी कुछ बोल दे रहा है। देखिए प्लीज बैठिए। 2-3 थिंग्स आई वांट टू हाईलाइट हियर। कई बार ऐसा हम बोलते हैं कि जो करंट रूल है और करंट जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको नहीं देता है। कई बार जो लिबरल्स है वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है, ऐसी भी बात करते हैं। मैं आपको आई विल साइट वन एग्जांपल ऑफ माय ओन सेल्फ। It really annoys me at very next level when we want to ask the questions pertaining to our constituency in parliament and opposition just creates a ruckus and the house is adjourned. As a youth, I find it very nonsense thing, okay, that I'm not able to speak for my constituency just because of one group of people are creating chaos in the house. One day I went to one of the senior leaders that why can't we suspend them and run the house properly. So that leader told us that it will run the house properly, but it will give a message outside that we are not listening to them. We are not letting them exercising their democratic rights. So in the name of democracy, some group are misusing democracy. But we cannot be like them. If we will start one agency, we will tell that you cannot speak about this, you cannot speak about that. It will again create that impression about India that we are not able to let them do whatever they want to do. So sometimes, because just to prove that we are very democratic, we have to face lot of false narratives or lot of attacks on us. But it's okay.
That's the beauty of democracy. Thank you, sir. Thank you. Yes. Nowadays, our generation has forgot how to set narratives because of the AI and the prevalence of chat GPT and things like that. We set our mindsets over there and then we seek for an answer from that side. So how to come into that panel of your expertise, that how can we be bold enough in setting our own narratives and not just be dependent on AI itself? For answering your question, let me talk about limitations of AI in creating narratives. It's a very religious thing, but I just want to put this here. If you will ask AI to create some derogatory image, create some derogatory scene for Hindu Devi Devtas, they will create it. They will show it to you. If you will ask AI otherwise about creating some derogatory, images of gods of other religion, I don't want to name it, they will tell you that our policy doesn't approve it. We have our religious code of conduct and it is against our religious code of conduct. So why one religion is put aside out of their religion code of conduct? Because when we talk about Sanatani, हम सबसे बड़े लिबरल्स हैं. जो लिबरल्स है ना, उससे भी ज़्यादा हम सनातन धर्म ही सबसे बड़ा लिबरल है, क्योंकि पहले से ही आप भगवत गीता को ले लीजिए. भगवत गीता में क्या है, अगर उसका सार आप ढूंढ लेंगे ना, गीता का सार, तो साहब 200 श्लोक में पूरी गीता आ जाएगी. पर फिर भी क्यों 800 श्लोक है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर है. पहले से ही हमारे वहाँ पे क्वेश्चन करने की ऐसी फ्रीडम है, जिज्ञासा, क्यूरियसनेस. सो अभी का जो एआई है, जब तक इंडियन एआई सिस्टम क्रिएट नहीं हो जाएगा, जैसे अभी एआई समिट में अगर कोई आप गए हो तो वहाँ पे एक सर्वम करके इंडियन एआई क्रिएट हुआ, आप अगर उसको डाउनलोड करेंगे तो वो हमारी इंडियन फाउंडेशन पे बना है. तो वो हमारे तरह से सोचेगा. एआई इज व्हाट? इंटेलिजेंस. सो करंटली द इंटेलिजेंस विच वी आर यूजिंग, इट इज नॉट having the Indian or our own fabric. वो हमारे फैब्रिक से नहीं बना है. इसलिए अगर नैरेटिव बिल्डिंग में भी अगर आप वो सब एआई सिस्टम का यूज करेंगे तो वो आपके ओन फैब्रिक से नहीं बना है. तो वो आपको पूरा एक प्रॉपर आपके अनुकूल या आपके लिए अच्छा नैरेटिव वो कभी भी आपको सेट करने के लिए हेल्प नहीं करेगा. अगर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हेल्प यू इज योर रीडिंग. What will help you is closely following the international affairs, closely following the events unfolding in front of you, closely following and understanding the behind the scene things. If you will do that, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि यूएस का ट्रेड डील कब हुआ, मदर ऑफ ऑल डील्स के 10 दिनों में आ गया. कितने लोगों को मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में पता है? ईयू के साथ, ईयू कंट्रीज के साथ हमने जो डील किया उसको विश्व में मदर ऑफ ऑल डील्स बोलते हैं, क्योंकि 27 देशों के साथ हमने एक साथ डील किया है, ट्रेड डील. उससे बहुत कुछ अच्छा होने वाला. उसके 10 दिन में यूएस ट्रेड डील के बारे में वी गॉट द न्यूज. सो अगर आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ कनेक्ट कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू पुट फॉरवर्ड योर नैरेटिव इन अ प्रॉपर वे. और जो भी काउंटर नैरेटिव होगा उसमें आप अच्छी तरीके से आप बात रख पाएंगे. थैंक यू. Hi sir, good afternoon. So the question is, in the realm of narrative diplomacy, how can leader harness the power of perception to bridge cultural divides and foster mutual understanding, particularly in diverse contexts like higher education or social awareness initiatives? See, when we talk about leadership, then a leader must be having a comprehensive perspective about all the things. If I am speaking something from here at one platform and I am giving an opinion as a leader, I have to first check it on my own, not by Google or ChatGPT or any particular party or any particular cleric.
rather than exercising the ideological things, we have to exercise the own practical things. जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं तो कोई भी, मैंने अभी आपको एक AI का एग्जांपल दिया कि उन्होंने ऐसी ऐसी लिमिटेशंस हैं, तो अगर मुझे किसी ने बोला तो मैं पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए. अगर फिर मैंने चेक किया, 2-3 मैंने खुद ऐसा किया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए तो तुरंत ही पॉपअप आ गया कि भाई ये हमारे रिलीजियस स्टैंडर्ड से खिलाफ है. तो उस प्रकार से जब लीडर बोलता है तो कई लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. अगर लीडर कुछ भी बुरा बोलेगा तो लीडर के लिए वो सुई होगी, पर किसी के लिए वो तलवार बन जाएगा. मैं अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ बोलूँ या कुछ भी बोलूँ तो मेरे लिए वो सिर्फ इट विल बी अ स्टेटमेंट, पर वो कम्युनिटी के ऊपर दूसरी कम्युनिटी के साथ क्या इम्पैक्ट आएगा वो चीज़ मेरे इमेजिनेशन के बाहर होगा. तो कभी भी when we are in a leadership position, we should always take stock from all the dimensions and then we should put our point forward. और आपने जो बोला सोशल हार्मनी, तो मैं आपको बोलूँ कि अभी जो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर हमारे स्टेट में एक ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति को, उनके फैमिली को उनके कम्युनिटी से बाहर निकालने का किसी ने वो कर दिया, फतवा कर दिया. तो फतवा तो हमारे उसमें तो होता नहीं है, फिर भी किसी ने ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया अपने कम्युनिटी के मीटिंग में. फिर जाके पता चला कि वो 2 लोगों को इंडिविजुअली बनता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको एक कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म को यूज किया जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम देम. तो मी बीइंग अ लीडर ऑफ दैट ओन कम्युनिटी, आई कैन नॉट कम फॉरवर्ड एंड टेल के वो चीज़ जो कि आपने गलत किया है, क्योंकि फिर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी फिर भी मेरे से नाराज ही होंगे. तो मुझे कैसे एज अ लीडर मुझे कैसे सच का स्टैंड लेना है? मैंने कुछ नहीं किया, जिसका शादी हुआ था ना उनको फोटो रख के मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया. तो इनडायरेक्ट मैसेज चला गया कि आई एम नॉट एंटरटेनिंग ऑल दिस थिंग्स. तो बीइंग अ लीडर कभी हमें डिप्लोमेटिकली भी सच का स्टैंड लेना चाहिए, पर वह पूरा प्रोस कॉन्स देखकर फिर उसमें आगे बढ़ना चाहिए. Thank you, sir. So you want to ask? नहीं सर, प्लीज. And you went to 5 nations in Southeast Asia and Japan. So what was your experience, and whatever the group articulated to them, where they got convinced from India's action? See, we had 3 objectives mainly to go for the global outreach. सबसे पहला था कि जो नैरेटिव्स वहाँ पे बन रहे हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के, भाई हमने वी वर वेरी मच एग्रेसिव, हमने वहाँ पे कुछ उनका बुरा कर दिया, यूएस ने आके ये चीज़ पूरा बंद करवाया, और वो पूरा चीज़ को हमें बर्स्ट करना था, जो फैक्ट्स था वो सामने रखना था. दूसरा चीज़ के जो डिफेंस मशीनरी को लेकर एक नैरेटिव वहाँ पे बन रहा था, उसमें भी वी नीड टू पुट फॉरवर्ड अवर फैक्ट्स, और ख़ास करके हर एक वहाँ के मीडिया को हमें एड्रेस करना था. क्योंकि मैंने आपको बोला कि 2 एयरक्राफ्ट की कंपनियों के बीच में बहुत बड़ी जंग चल रही थी, और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स आप ब्लूमबर्ग देख लीजिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लीजिए, सब चीज़ों में अलग प्रकार के नैरेटिव गेम शुरू हो गया था. पर क्या होता है कि अगर अब 5 देशों में हम गए, वैसे 60 से ज़्यादा देशों में सब गए, और ये देशों में जब हम गए और वहाँ के मीडिया ने जब कवरेज किया, तो इंटरनेशनल मीडिया को बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बात रखनी पड़ी. इंटरनेशनल मीडिया को बाय डिफ़ॉल्ट हमको सुनना भी पड़ा, और फिर नैरेटिव चेंज होते रहे. तो एक दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव यह था. और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव यह था कि इंडिया एंड पाकिस्तान, पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर, वो दोनों में से कौन से देश किसके साथ है, उस चीज़ को भी हमें टटोलना था. सो दैट थिंग वी वर सक्सीडेड इन ऑल 3, बट मोर टाइम took by the international media. जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था, Malaysia supported. Malaysia was the, agar if you can check the statement of Malaysian president during the Operation Sindoor,
one of the strongest condemnation was from Malaysia. Their own party was against him to, use such harsh words against Pakistani terrorists, but he did, and Malaysia supported. Even right now, when our PM sir went to Malaysia, again he, in a joint statement, they told that no, we are against terrorism, and cross-border terrorism is not at all should be tolerated. India, yes, and they told that India reserves the right to retaliate. So Malaysia was completely with us, but there were some infringement elements कि जो मलेशिया के जो थे उनको थोड़ा प्रॉब्लम था. बट मलेशिया पहुंचते पहुंचते तो इतने पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया कि पाकिस्तान एम्बेसी ने हमारे खिलाफ, हम 8 MPs थे, हमारे खिलाफ प्रेस नोट जारी किया कि भारत से ऐसा एक पूरा ग्रुप आया है, वह हमारे लिए दुष्प्रचार कर रहा है, उनके कई अज्ञात लोग हमारे लोगों को पाकिस्तान में ही मार देते हैं, तो वो टेररिज्म नहीं है, ये है वो. बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी और फिर ऐसा बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं. तो दे हैड टू रिकॉग्नाइज द ऑपरेशन सिंदूर ग्रुप, ग्लोबल आउटरीच ग्रुप, दैट वी हैव केम एंड वॉट एवर वी आर स्पीकिंग इज रॉन्ग. तो उनका प्रेस नोट ही हमारे लिए एक विक्ट्री था. इट वॉज रियली वेरी यूजफुल एक्सरसाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट, इफ यू फॉलो द पार्लियामेंट्री हैपनिंग्स, yesterday only India has created more than 68 parliamentary friendship groups with all the countries, just to give that strengthen the relationship. And it was our Prime Minister who took a feedback when we came back from Operation Sindoor. He invited us for a dinner at PM House, and there during the feedback we gave the feedback that parliamentary friendship groups will be really helpful for all of us. And he readily accepted it, and yesterday it was announced I have been nominated for India-Vietnam Parliamentary Friendship Group. So almost all the MPs are being given one country to engage with. Thank you. Thank you so much, sir. Before we close the session, on behalf of my students, this is just an observation also and a very basic question. Now we are discussing Operation Sindoor, and they say what is there in a name. So what went into the minds of the policymakers at that time, at the highest level, that it should be given a name, Operation Sindoor, and then I think it was a very well planned name and well planned move of the government to give it a name of Operation Sindoor, so that it can attach to the emotions of our women masses, and also it will reach to the households. So what is your say on that? So if you all know the way the Pahalgam attack happened, and they tried to show something to India and Indian PM that see, we have asked the wives and about the religion, and we literally told the wives that go and tell your PM that we did this. So जब उनका कई सारे हमारी बहनों का घर बर्बाद हो गया, और जिस प्रकार से पूरे देश में सेंटिमेंट था, मैं मानता हूँ कि हम कोई भी अगर फिर से भी अगर हम वो इंसिडेंट याद करें तो हमें गुस्सा आ जाता है. इस प्रकार के जब माहौल के अंदर जब यह पूरा ऑपरेशन प्लान हुआ, जब हम ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन के लिए जा रहे थे, उससे पहले 2 दिन पहले हमारा ब्रीफिंग हुआ था पूरा, कि किस प्रकार से ये पूरा हुआ, अभी हमारा क्या रोल रहेगा और किस प्रकार से हमें हमारी बात रखनी है. तो जो ब्रीफिंग हुआ उसमें से वी आर अलाउड टू पुट ओनली 40% टॉक इन पब्लिक. तो उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस प्रकार से हम ऑपरेट करने वाले थे, वो बदला हमारी बहनों के लिए था. और जो पीएम साहब ने तभी उनको ये बोला कि इस ऑपरेशन का नाम हम ऑपरेशन सिंदूर रखेंगे और इसका ब्रीफिंग भी हमारी बहन ही करेंगी, क्योंकि यह बदला हमारी बहनों के आंसुओं का बदला है.
एंड दैट इज वाई ऑल्सो दे हैव डिसाइडेड टू रिप्रेजेंट. वहां से आपने देखा तो कोई भी फीमेल आपको दूर दूर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नहीं दिख रहे थे पाकिस्तान से, और हमारे यहाँ पे व्योमिका और सोफिया जी कर रहे थे. तो ऑपरेशन सिंदूर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो हमारे बहनों का जो उनके ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है उसको ही हमें इमोशन को हमें वहाँ पे बयां करना. इट इज देयर रिवेंज एंड इट इज इवन हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी ने तो बोला था कि ये रिवेंज भी नहीं है, ये तो जस्टिस है. Justice, absolutely. Or I think that was the moment when the whole country was standing together. We were also united, irrespective of religion or caste. So thank you so much for this session and for all the interaction with the students and with the faculty present here and the dignitaries present here. And I sincerely, on behalf of myself and on behalf of SGT University, express my heartfelt gratitude and thanks to you for sparing all your time for this session. And this has been a very productive session because a new kind of paradigm was established before even the common masses when we talk of narrative. So this was the best example of narrative in the recent times. Thank you so much, sir. And I hope that we may engage on more issues in that future, and we carry on this dialogue with you and get support and guidance from persons like you. Thank you so much. The session was very engaging and meaningful. I request everyone in the audience to give him a big round of applause.